Year, I think, in Varanasi, and Nadeem was taking a media workshop. So basically, where I met him first time, that he was interacting with the local, रिपोर्टर्स हैं स्टूडेंट्स मीडिया के और कॉलेज। उत्तर प्रदेश में, एंड द पीपल हु क्लोजली वर्क विथ मीडिया, तो उनके साथ जो बात करते हैं. सो आई मेट नदीम ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरिंग वन ऑफ द वर्कशॉप्स, एंड आई थिंक वी इमीडिएटली it was a good conversation that we had. We started talking about how fake news is another shadow pandemic that is going on. Why there is a drive of this fake news? क्या होता है अगर आप मीडिया को सही से स्टोरीज नहीं बता पा रहे हो, या फिर मीडिया सही से स्टोरी नहीं कवर कर पा रही है, तो उससे लोकल जो रूरल एरिया है उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है. और आजकल हमने देखा है कि इवन urban areas have started adopting, matlab accepting the fake news that come their way. एग्जैक्टली। Meena, Nadeem, I think we have fairly people. I think we should just start. So, हाँ I was talking about the whole discussion today is going to be based on why we are talking about fake news is because we see fake news every day. In fact, one of the reports that I was reading, and I will introduce Nadeem to you, and I will introduce me also. I'm just, for those who have already joined, that in the beginning of the March, jab the lockdown was announced, and immediately there was flurry of fake news. So jab Janta curfew hua, in a week, and this is the report that I'm quoting from India Spent. It's called manipulative fake news on the rise in India under lockdown, and it's a study that actually tells you कि 15 fake news week में आते थे, and that actually spiraled to 33 fake news. तो चाहे आप Instagram यूज कर रहे हैं या Twitter यूज कर रहे हैं, whether you are into the cosmetics and you're a influencer who's talking about brands, or say I am a foodie myself, how does it affect all of us who are part of this digital space? So hello, Nadeem and let me introduce myself. I'm a journalist, former journalist who has worked in television, different television channels in India, and I have close to 10 years of experience working in the field of media. And now I write as an independent journalist in various platforms in Goa. And Nadeem, on the other hand, is from Uttar Pradesh. He is an investigative journalist from Uttar Pradesh, and right now he's working as a media coordinator for one of the NGOs. That I think once you track Nadeem's social media platform, you'll understand. But more importantly, he is here as an independent fact checker today. Nadeem has close to decade-long experience of basically looking at मीडिया वेरी क्लोजली एंड इन दी हार्टलैंड ऑफ इंडिया. अगर आप आज की न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि एक दिन क्रिमिनल गेट्स अरेस्टेड एंड नेक्स्ट डे ही गेट्स एनकाउंटर, एंड नदीम इज फ्रॉम दैट स्टेट, ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. So it will be more interesting to talk to Nadeem about the recent ways of how media is developing, and Nadeem is here as an independent fact checker. So I will start with Nadeem. Nadeem, just tell us, and for the benefit of our viewers, what is an independent fact checker really means, and how do you function? सी जब से इंडिया में हमारे यहाँ फेक न्यूज़ की बाढ़ आई है, ख़ास करके 2014 के बाद से जो एक एरा आई है, उसने हमें देखा है कि बहुत नॉर्मल फेक न्यूज़ को बहुत नॉर्मली कहा जाता है. पहले का थोड़ा सा वक्त अगर मैं बताता हूँ, ऑलमोस्ट 2018-19 तक अगर हम कहना चाहें, तो उस दौर में अगर कोई फेक न्यूज़ आती थी और अगर हम किसी को बोलते थे, या वेरीफाइड हैंडल्स होते थे, वेरीफाइड फेसबुक पेज होते थे, हम उनको बोलते थे कि ये फेक है, तो दे यूज्ड टू अपोलोजाइज, ओके सर, और दे यूज्ड टू डिलीट, है ना. अभी क्या है, अब डिलीट नहीं करते हैं, अभी सीधा उनका ये है कि नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, मतलब दे विल जस्ट स्माइल एंड से दैट्स ओके, वी आर ओके विद दैट, वी हैव नो प्रॉब्लम, है ना. तो फेक न्यूज़ का अगर हम इतिहास उठाते हैं, फेक न्यूज़ के इतिहास पे जाते हैं, तो 1938 की बात है. शिकागो में एक स्पेसशिप लैंड हुई है, उसमें से एलियन उतरे हैं, एलियन के पास लेज़र रे गन्स हैं, और वो इंसानों को इस दुनिया से हटाने आए हैं, दुनिया से भगा देंगे, सारे इंसानों को मार देंगे. ये जो बेसिकली जो मैंने आपको एक नरेटिव बताया है, ये 1938 की एक H.G. वेल्स की नॉवल है, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स,
और इसका एक सीबीएस रेडियो पे ब्रॉडकास्ट आ रहा था जिसे जैसे ओवेल्स पढ़ रहे थे, और उनकी रेडियो ब्रॉडकास्ट को लोगों ने इतना सीरियस लिया कि उन्होंने लगा कि ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट है। एक्चुअली ही वाज हम्म। ड्रामेटिक एडेप्टेशन पढ़ रहे थे, जैसा होता है कि नाट्य रूपांतरण पढ़ रहे थे, लेकिन हम्म। उसको लोगों ने कहा कि नहीं, इतना सीरियस ले लिया कि पूरे कैलिफोर्निया में एकदम एक पैनिक हो गया, पैनिक बाइंग होने लगी, लोगों ने गन्स वेपन्स खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस यूके में गन कल्चर बड़ा अच्छा है। मतलब यू कैन इजीली बाय, या यू गो टू अ स्टोर एंड यू बाय अ गन एंड यू बाय कार्ट्रिजेस, यू बाय ऑटोमेटिक राइफल्स। तो इतना पैनिक होने लगा। तो ये अगर हम इतिहास देखते हैं तो 1938 की ये घटना है, और अगर 1938 से लेकर आज तक हम आए तो बहुत सारी जो है हिस्ट्री में ये इंसिडेंट्स भरे हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ प्रमोट होती है, फेक न्यूज़ से फ़ायदा होता है। फेक न्यूज़ के अगर हम थोड़ा सा और उसमें डीपली अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इससे तीन तरह के लोग इफेक्ट होते हैं, यानी कि तीन तरह के लोगों को फ़ायदा भी होता है। एक होते हैं जिनको पॉलिटिकल माइलेज होता है, उनको पॉलिटिकल फेवर्स मिल रहे हैं, वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं। दूसरे लोग या होते हैं कि वो अपने मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। देयर आर पीपल, देयर आर एनॉर्मस, मतलब इतने लार्ज नंबर में लोग ट्विटर पर हैं, फेक अकाउंट्स हैं, मस्ती या और पैरोडी के लिए उन्होंने अकाउंट्स बना रखे हैं, एंड व्हाट दे डू इज दे जस्ट, उस पर भी वो फेक न्यूज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, है ना। फिर अगर हम उसके बाद अभी हम आते हैं तीसरे लोग, वो होते हैं जो बिजनेस के लिए करते हैं फेक न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल देर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्लिक बेट्स हैं, आप क्लिक करते हो, जितनी बार भी आप क्लिक करते हो स्टोरी को उतनी बार उनको गूगल एडसेंस से पेमेंट होता है, फेसबुक एडसेंस से पेमेंट होता है। तो ये तीन तरह के लोग हैं जो फेक न्यूज़ इंडस्ट्री को चलाते हैं। एक जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए, दूसरे हमारा जो एंटरटेनमेंट के लिए चलाते हैं, और तीसरे लोग वो जो बहुत ही कमर्शियल बेनिफिट्स ढूंढते हैं, जो इसमें आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। करेक्ट। अ, और तो या तो in fact that's exactly the point। मतलब आज अगर हम एक्चुअली में ये पिछले 4-5 सालों से इसका जो है उसका ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। बट आई थिंक इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड द पैंडेमिक ऑल्सो। मतलब अगर मैं देख रही थी, लेकिन जो मैं इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट जो मैं करी थी, एंड इंडिया स्पेंड इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ट्रस्टेड, रिपोर्ट रेप्यूटेड। that you can actually credible जो है उसमें। and this is very important for all of us who are into the thing कि जब जनता कर्फ्यू was announced from 15 in a week, जो छोटे मोटे जो आते हैं, नदीम will be we will come to it कि which are the bigger fake news that has affected people largely। पर जब जनता कर्फ्यू हुआ तो it used to be like 13 to 15 a week, and then it spiraled to 33 fake news articles or videos in a week। So Nadeem, tell us what is this like? Why is it like कि अब पैंडेमिक के टाइम को इतना एक्सप्लॉइट किया गया था कि तबलीगी मरकज की बात करें या किसी और की बात करें, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ फेक न्यूज करंटली व्हेन यू सी इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? दीपाली देखिए, अगर सिनेरियो की बात करते हैं तो सिनेरियो में बहुत बेसिक चीज़ ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ फेक न्यूज़, यानी कि इन्फॉर्मेशन के जो हमारे सोर्सेज है, चैनल्स है, वो लिमिटेड है हमेशा से न्यूज़ में। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन की जो है ना, जब एक इन्फॉर्मेशन की लाइन टूटी जा रही है तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत आगे बढ़ गई। मतलब हमारे लिए बहुत इजी एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया कि हम मिस इन्फॉर्मेशन को हमने अपनाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इन्फोर्स किया, बहुत अच्छा कदम था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म नहीं बनाया कि हम न्यूज़ कहाँ से देंगे। मतलब हमारे ऑनरेबल पीएम आ जाते हैं लाइव, और पीएम साहब कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि स्टेट्स की अपनी गाइडलाइंस होगी, स्टेट के सीएम्स आते हैं, सीएम्स अपनी गाइडलाइंस बताते हैं, गाइडलाइंस में तो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन का जो चैनल था ना, वो क्लियर नहीं था। इसीलिए जब हम इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन में भले ही फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, लेकिन उसको हम समझना ही नहीं चाह रहे थे। हमें जब चैनल नहीं मिला तो हमने एक मिस इन्फॉर्मेशन के चैनल को पकड़ लिया। हमें लगने लगा कि जो व्हाट्सएप पे आ रहा है वो बहुत करेक्ट है, हमें जो फेसबुक पे पढ़ा वो करेक्ट है। अच्छा, होता क्या है कि कैची थंबनेल्स होते हैं, ऊपर बहुत अच्छी सी हेडलाइन होती है। जैसे अभी एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि 2000 के नोट में चिप, तो ये वही चीज़ है कि जो एक्चुअली नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने इंटरनेट पे पढ़ा है तो सच लिखा होगा, है ना। बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं, इंटरनेट पे हमने पढ़ा था, जबकि इंटरनेट पे हर चीज जो है वो करेक्ट नहीं है। हमको फैक्ट्स को वेरीफाई करना, समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट ने कभी फैक्ट चेकिंग या फैक्ट चेकर्स को या हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स को कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। उन्हें लगता था कि जो फेक न्यूज़ है
इससे कभी गवर्नमेंट इफेक्ट नहीं होगी, बहुत होगा लोकल इफेक्ट होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी बहुत इफेक्ट होंगी, लेकिन सरकार कहीं इफेक्ट नहीं होगी। तो सरकार हमेशा से एक बैकफुट पे थी, लेकिन जब पैंडेमिक में उसने देखा कि उसके फॉर एग्जांपल एक वायरल हुई थी न्यूज़ जिसको मैंने ब्रेक भी किया था कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है और उस पर आप जो है अपना डिटेल दीजिए, आधार नंबर दीजिए, तो आपको क्या कहते हैं राशन घर पे मिलेगा। अब वो लिस्ट जो दी वो आधार से लिंक करने की लिस्ट नहीं थी, वो बेसिकली आपकी बैंक डिटेल्स ले रहे थे वो लोग, और उसके बाद आपके अकाउंट्स को हैक कर रहे थे, उससे वो पैसा पेटीएम में ट्रांसफर कर रहे थे या गूगल पे में कर रहे थे। तो एक ये फ्रॉड भी अभी बढ़ा हो है रहा मिस था, लाइक इन्फो। हाँ, ये ड्यूरिंग द अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ, हाँ। ड्यूरिंग द कोरोना मतलब एक क्राइम में बहुत कमी आई, लेकिन इंटरनेट का जो क्राइम है वो बहुत बढ़ गया। अगर ट्राई की हम रिपोर्ट देखते हैं तो 86% जो है राइज हुआ है इंटरनेट के क्राइम्स में। इसी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को अगर हम ले लें तो गवर्नमेंट ने कभी कोई गाइडलाइन बनाई नहीं थी ना, गवर्नमेंट के लिए फेक न्यूज़ बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है कि गवर्नमेंट ने पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग टीम्स बनाई। हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हैं, ऑल्ट न्यूज़ है, हॉक्सलेयर है, उनको रोप इन किया, उनसे हेल्प आउट करते हैं। अभी जो हम एक इनपुट को वेरीफाई करने में हमें टाइम लगता था, थोड़ा सा आसान हो गया कि हमें लोकल पुलिस सुनती है जब हम फ़ोन करते हैं उनसे कोई फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक आइडियोलॉजी जो थी वो चेंज हो रही है, क्योंकि इसके जो दूर वाले जो परिणाम है यानी कि लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स है उसको लोग जान गए हैं कि कितना नुकसान कर सकता है। तो बट नदीम, इट्स मैं गुड। आपको यहाँ यहाँ पे मैं एक्चुअली लाइक आई नो इट, दिस इज now when everybody started talking alt news and even the ones that you're working for, and there are others like Quinton, a lot of them are actually cracking. But ये recent report है on the 1st of July, BBC, and if anybody wants it, I can actually put these links when I will post the IGTV. BBC की report on 1st of July says coronavirus the human cost of fake news in India. और इसका नदीम, आई वांट यू टू टॉक अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब फेक न्यूज जब इनिशियली जब आ रहे थे या अभी भी उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन द माइनॉरिटीज वर टारगेटेड थ्रू फेक न्यूज, अ लॉट ऑफ traders were affected, a lot of their businesses were affected. हमने दिल्ली में खुद देखा था कि people were actually with their religious flags, and that has a long lasting impact. I want you to talk about a simple WhatsApp forward that perhaps comes in a colony WhatsApp group or school WhatsApp group, कोई parent भेज रहा है, कोई colleague भेज रहा है, कोई, how does it affect when you irresponsibly just forward it saying कि चलो ऐसा है, maybe it's true, and then it has a long lasting impact. Nadeem, I want to know from you कि ऐसी कोई story है that has had major repercussions in the society? देखिए, अगर रिकवर्शन की बात करी जाए तो नरेटिव सेट होता है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि आप भी मीडिया के बैकग्राउंड से हैं, मैं भी मीडिया से हूँ, और जो हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हैं वो भी जान रहे होंगे कि एक नरेटिव सेट होता है कभी भी, है ना। तो सरकार ने कभी नरेटिव पे काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने उन्हीं फेक न्यूज़ को नरेटिव के तौर पर चलाया है। अगर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक बहुत फेमस वायरल वीडियो आया था जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे थे, बैठे खाना खा रहे थे, और वो यूटेंसिल्स से पूरा एक एक पार्ट जो था ग्रेन का वो लिक कर रखे, मतलब हाथ से चाट के खा रहे थे। अब उसको वायरल कर दिया साहब लोगों ने कि नहीं, अरे ये तो मतलब देखिए ये मुस्लिम्स हैं, ये तो थूक के देते हैं, जमाती के लोग हैं। अब वो वीडियो 2015 का वीडियो था, जब हमने उसको फिर से वेरीफाई किया, 2015 का वीडियो था, और वो बोरा कम्युनिटी का वीडियो था। बोरा कम्युनिटी में वो एक एक अन्न के दाने को इतना कीमती समझते हैं कि वो उसे बाकायदा वेस्ट नहीं करते। दे हैव देयर ऑफिशियल ग्रेन कमिटीज इन देयर हाउसेज, इन देयर सोसाइटीज़, और बोरा मुस्लिम कम्युनिटी बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है। फिर हमने वहाँ से उनके वर्जन लिया। इसी तरीके से एक स्टोरी आपने देखा था कि जब तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे, जब उनको क्वारंटाइन सेंटर लेके जाया गया, जब उनका कोविड डिटेक्ट हुआ, तो एक स्टोरी बहुत सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स और क्या कहते हैं वेबसाइट्स और चैनल्स ने चलाई कि क्वारंटाइन सेंटर में दे आर रिमूविंग देयर क्लोथ्स, दे आर अब्यूजिंग नर्सेज एंड डॉक्टर्स, दे आर इवन स्पिटिंग हेयर एंड देयर। तो अब उस पर भी हमने किया, तो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक बंदा था, वो मस्जिद में बेसिकली वो मस्जिद थी, लेकिन उसको वो बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल है, उसने हॉस्पिटल में उसने अपने कपड़े रिमूव कर दिए हैं और वो घूम रहा है और कह रहा है कि मैं कोरोना फैलाऊंगा। अब वो वीडियो हमने देखा तो वो 2012 का एक वीडियो था, वो कराची की एक मस्जिद का वीडियो था जिसमें जो बंदा था वो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज था, और
उसने तोड़फोड़ करी थी। तो होता क्या है कि जो इंटरनेट पे लोग बैठे हुए हैं वो पुराने पुराने वीडियो निकालते हैं या कीवर्ड सर्च करते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, कीवर्ड सर्च करते हैं, उस या कीवर्ड से मिलता जुलता कोई वीडियो मिला और उसको एक नैरेटिव के तहत हमारे सामने पेश कर देते हैं। गलती करेक्ट। हमारी कहाँ पे होती है, जब हम, क्योंकि हमें बेसिक फैक्ट चेकिंग की तो आदत होती ही नहीं है। हम वीडियो देखते हैं, वीडियो का थंबनेल देखा, बड़ा कैची सा है, ऊपर अच्छी सी लाइन लिखी हुई है कि देखो सच्चे रिलीजन के हो, अपने रिलीजन की रक्षा करना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। तो कहीं ना कहीं एक लोगों को वायलेंस के लिए इंसाइट किया जाता है कि नहीं देखिए आपके साथ गलत हो रहा है। और जब आप नैरेटिव देखते हैं, जैसे आपने बताया ना कि दिल्ली में लोग फल नहीं ले रहे थे, लोग अपनी शॉप्स के बाहर या मार्किंग और फ्लैग्स लगा रहे थे, ये लखनऊ में भी हुआ हमारे साथ, यूपी में भी हमने देखा कि गांव में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। शहर में तो हो ही रही थी, गांव देहात में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग सामान नहीं ले रहे थे। अच्छा तुम अपना आधार दिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तो मुस्लिम हो तुमसे हम नहीं लेंगे। तो ये एक नैरेटिव सेट किया गया, नैरेटिव करेक्ट। सेट किया गया। और अनफॉर्चुनेटली हम एक देश में हमारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, हम देखते हैं जो हमारे साथ कभी काम करते थे, वो सब इस प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। उन्हें यस, लगता है कि इंटरनेट पे एब्सोल्युटली। देखा है तो बहुत सही है। तो इस एब्सोल्युटली। चीज़ को हमें एक गोल्डन रूल बनाना पड़ेगा, इंटरनेट पे जो भी है वो सच नहीं है। और किसी भी चीज़ को बिना ओपन करे, बिना देखे फॉरवर्ड मत करिए। करेक्ट। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड कर देते हैं और हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। सामने वाला उस चीज़ को कैसे लेगा और उसको आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा, यू नेवर नो दैट। तो एब्सोल्युटली। फॉरवर्ड करने से पहले 2 मिनट रुकें, देखें, उसे पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि वाकई इसमें कुछ है ज़रूरत, जो न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन आप किसी से शेयर कर सकते, तो आप शेयर करें। अनवेरीफाइड न्यूज़ कभी शेयर मत करें। बट आई इन फैक्ट वन ऑफ द, बिकॉज मैंने बहुत पहले सवाल बहुत सारे लोगों को बोला था अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें। तो वन ऑफ द व्यूअर्स, एंड Zahir is live right now, and Zahir has actually asked me, is there any real accountability in law to which one's active participation in creating fake piece of news और abetting circulation of such, मतलब अगर कोई, अगर आपको पता है कि दिस इज द सोर्स जिसने फेक न्यूज फैलाया है या फिर फॉरवर्ड किया है, so is there any crime, any, is there punishable, like can he be punished under some law? बेसिकली देखा जाए अगर ना दीपाली, तो आईटी एक्ट यानी कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, आईटी एक्ट की 66 जो धारा है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। बट चूंकि इंडिया में साइबर लॉज के जानकार बहुत कम हैं, दूसरी चीज़ जब इनको इन्फोर्स करने के, इन्वेस्टिगेट करने की बात आती है, तो हम लोग कभी भी जो है मतलब बेसिकली आप एक नॉर्मल एफआईआर कराने जाओगे तो आप तो जानते ही हो कि पुलिस विल से कि ठीक है आप कल आइए, परसों आइए, अच्छा कहाँ हुआ था, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दूसरे पुलिस स्टेशन जाइए, ये नॉर्मल था। तो जब आप साइबर क्राइम के लिए जाते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड लोग हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब होता क्या है साहब कि साइबर सेल जो होता है, उसको मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि साइबर सेल जो होता है वो कभी एफआईआर नहीं लिखता है। इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव सेल, जस्ट लाइक अ करेक्ट। बॉडी, लाइक एटीएस, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। तो जब हम साइबर सेल जाते हैं तो हम साइबर सेल में जाके एक कंप्लेन दे सकते हैं, लेकिन हमको एफआईआर एक नॉर्मल थाने में लॉन्च करानी पड़ेगी। आप थाने में एफआईआर लॉन्च करा दीजिए, उसकी कॉपी लीजिए और एक कंप्लेंट आप दे देंगे साइबर सेल को, तो साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगा। जैसा कि हमारे व्यूअर हैं जहीर, उन्होंने बोला ना कि मिस इन्फॉर्मेशन या जो लोग फेक न्यूज़ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली देयर आर लॉ। आप उनको आप चार्ज अगर उन पर लगता है और चार्ज अगर प्रूव होता है, दे आर प्रूवन गिल्टी, तो उसमें बाकायदा सज़ा है, 3-3 साल की सज़ा है। 66 एक्ट बहुत ही उसकी ग्रीव एलिगेशंस और धाराएं हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली हम बचते हैं, हमें लगता है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन आई है, हमारा क्या जा रहा है ना। या हम देख भी रहे हैं, जैसे बहुत नॉर्मल चीज़ें, मेरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो हम लोग फॉलो करते हैं। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में मुझे कोई हेटफुल स्पीच मिलती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, आई गो एंड जस्ट रिपोर्ट दैट अकाउंट। अगर हम रिपोर्ट भी या कर देते हैं तो वो बहुत या बड़ी चीज़, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हैंडल्स हैं, या जितने भी मीडियम्स हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना पब्लिक पॉलिसी है। एंड पब्लिक पॉलिसी वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर 2-3 महीने में दे आर उस पॉलिसी को वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें नए नए चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो अगर आप जब पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो उन पॉलिसीज़ में इतने प्रोविजन है कि वो अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। अगर रिसेंटली अभी देखा जाए, परसों पायल रोहतगी का अकाउंट सस्पेंड हुआ है, या इससे पहले रंगोली का अकाउंट सस्पेंड हुआ था, इससे पहले बहुत सारे अलग अलग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड, जो एक पर्टिकुलर विचारधारा को भी प्रमोट करते हैं या उस विचारधारा से सहमत, अच्छी चीज़ है, लेकिन उस विचारधारा के पे जा करके एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड्स या एक रिलीजन के लोगों को अब्यूज़ करते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज है ना।
तो उस Yeah. चैलेंज को ओवरकम करने के लिए देर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द प्रोविजंस इन द लॉ, बट वही है कि हम करते ही नहीं, हमें लगता है कि हमारा क्या जा रहा है। बट Yeah. इस प्रॉब्लम के लिए हमें समझना पड़ेगा कि Correct. ये प्रॉब्लम जो है छोटी प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इसे हमें ये समझना पड़ेगा कि आने वाली जो नस्लें हैं या आने वाले जो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, हम उनके लिए कैसा समाज, कैसा भविष्य तैयार कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमको कहीं लगता है कि कोई चीज़ डाउटफुल है या फेक न्यूज़ है Yeah. या कोई हेट मॉन्गर स्पीच कर रहा है या हेट मॉन्गरिंग कंटेंट शेयर कर रहा है, तो वी शुड इमिडिएटली रिपोर्ट इट टू द सोशल मीडिया वेबसाइट्स। एंड हो सके तो हम ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, आप ट्विटर पे एफआईआर कर सकते हैं, जाके पुलिस को बोल सकते हैं, या आप लोकल थाने में भी जाके भी एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर लॉन्च होगी, क्योंकि होता क्या है, लोगों में अब जो डर आया है कि केसेस लॉन्च होने लगे इस पैंडमिक में। जिन्होंने रूमर्स फैलाई, फेक न्यूज़ फैलाई, उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट ने जाकर के केसेस लॉन्च किए हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने एक ही स्टेप उठाया है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप भी स्टेप उठाइए, क्योंकि गवर्नमेंट तो उठा रही, आपको भी उठाना पड़ेगा। Acha. Nadeem, there are a lot of questions that I have to take. There's one from Barsha, there's one from Zahid, there's one from Khan. I'll take them. But I think, since you're here, we will take an opportunity to basically, अगर आप हमारे लिए एक ऑपरेशन, कैसे वो ऑपरेशन करता है, what is the procedure of spreading fake news? अगर आप हमको वो थोड़ा सा डिटेल्स में समझाएं, तो maybe it will be easy to identify the next time there's a WhatsApp forward that comes your way or any fake news that comes your way through different platforms. Explain us what is the systematic procedure of spreading fake news, because I remember in Goa recently there was this case, and one of the journalists he was actively reporting on that case, और ये coronavirus के लिए था, and there was some panic, and he said, I don't understand, and he was so frustrated, he actually got on Twitter, he's like, I don't understand, when I'm trying to tell the public the real news, there is only 20 likes on my tweet, but if there is a fake news, that immediately there is a spiraling of fake news. तो अगर आप हमको ऑपरेशन बताए ना कि कैसे होता है ये फेक न्यूज स्प्रेड, वेयर इट बिगिंस फ्रॉम, हाउ इट स्टार्ट एंड हाउ डज इट स्प्रेड। बहुत सिंपल चीज़ मैं लेता हूँ। जैसे कोई अकाउंट, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, जिनका काम यही है ना। मैंने बोला ना, जैसे पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी पॉलिटिशियन ने कुछ स्पीच दी, उसमें एक पार्ट मिल गया है ना, ऑपोजिट ग्रुप ने उनके मीम्स बना के शेयर करना शुरू कर दिए। अच्छा, होता क्या है कि हमारी जो इंटरनेट जनरेशन है वो जानती है कि दीज मीम्स आर फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, है ना। या कई बार लोग होता है कि ट्रोल करने के लिए भी मीम्स बनाते हैं, राइट। उन्हीं मीम्स को जब नीचे स्प्रेड किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जाता है, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो उसको सच मान लेते हैं, है ना। अब यही मीम जब फेक न्यूज़ बनाने वालों के पास जाता है तो उसको चेंज करते हैं। ऑल दे डू इज़ थोड़ा सा उसको एडिट कर देंगे, थोड़ा सा उसमें से डिटेल हटा देंगे, एक्चुअल जो खबर है, खबर का हेडलाइन चेंज कर देंगे और उसको आगे बढ़ा देते हैं। अब साहब, बढ़ा तो दिया आपने न्यूज़ स्प्रेड कैसे होती है? चेन मेल पहले होता था, अब चेन मेल बंद हो गया है। अभी क्या है कि घोस्ट अकाउंट्स हैं ऑलमोस्ट, मतलब देर आर घोस्ट अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि एक भैया जी स्पीक्स एक घोस्ट अकाउंट है। नो वन नोज, आई नो कि दैट्स अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिसका अकाउंट है, और उसके फॉलोअर्स 70-80,000 के में है ना, 70-80,000 में ही है ऑलमोस्ट। अब उस अकाउंट से कुछ ट्वीट होता है, उसने तो मजाक के लिए ट्वीट किया, लेकिन देर आर पर्टिकुलर जर्नलिस्ट जो उन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि यार किसी ने शेयर किया है तो इट्स क्रेडिबल, इट्स क्रेडिबिलिटी। अच्छा, न्यूज़ में या इन्फॉर्मेशन में हम क्रेडिबिलिटी भूल चुके हैं, सोर्सेज को हम वेरीफाई करते नहीं है, जबकि ये बेसिक रूल है जो जर्नलिस्ट को पता है। इनफैक्ट जब जर्नलिस्ट भी नहीं वेरीफाई करते हो, बिना वेरीफाई करे उस न्यूज़ को चला देते, क्योंकि ब्रेकिंग का दौर चल रहा है। जो जितनी तेज ब्रेक करेगा, मतलब आई डोंट नो, गॉड नोस क्या चाहते हैं आप ब्रेक करके, खबर आप ब्रेक करना चाहते हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? क्या आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं या कि सैलरी इंक्रीमेंट हो? आई रियली डोंट नो। एंड लोग इलॉजिकल चीज़ें चला देते हैं। मतलब अभी माइग्रेंट लेबर्स को वापस उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक स्टोरी आई थी, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बस जो है आगरा भरतपुर बॉर्डर पे हम खड़ी कर दे रहे हैं, आप ले जाइए। अब उस बस की फोटो तो आई नहीं सोशल मीडिया पे, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने फोटो उठा के लगा दी कि ये बस लाइन से खड़ी है, और वो कुंभ मेला की बस की फोटो थी, उन्होंने स्टोरी ब्रेक करी, कुंभ मेला की फोटोज थी। तो इस तरीके से होता क्या है ना कि कई बार हम इजी ऑप्शन देखते हैं, जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो हम पहले पन्ने पे जो इमेज आती है उठा के हम लगा देते हैं, हम सोचते नहीं कि करस्पॉन्डिंग इमेज है इसके कि नहीं है। तो कैची बनाने के लिए हम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन सामने हमारे फर्स्ट नोट पे आई, हम तुरंत उसको ग्रैब कर लेते हैं कि दिस इज द इन्फॉर्मेशन एंड ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है।
तो ये Right. प्रोसेस होता है, ये पहला प्रोसेस होता है। इसके बाद वो स्प्रेड, जब स्टोरी बन जाती है तो स्टोरी स्प्रेड होना शुरू होती है, घोस्ट एनालिसिस होती है। फिर वहाँ से कुछ हमारे तथाकथित बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं जो उस स्टोरी को उठा लेते हैं, उस स्टोरी को हाँ. वेरीफाई कर देते हैं। अच्छा होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल a senior journalist like Arnab, a senior journalist like Yeah. Amish Devgan, रवीश, मतलब रवीश ने तो नहीं किया, बट देर आर इनॉर्मस जर्नलिस्ट जिन्होंने Correct. बहुत छोटी सी चीज है उसको वो जब वो शेयर कर देते हैं ना, भले ही तो वेरीफाई वो problem. भी नहीं करते हैं, तो Yeah. होता क्या, अरे यार उन्होंने तो किया है तो इसका मतलब तो सही होगा, उनसे ज्यादा तो आप नहीं जानते हो। ये जो आपको तर्क सुनने को Yeah. मिलते हैं ना, तो आप खुद अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे। और एक Yeah. नैरेटिव, जैसे मैंने Nadeem, आपको भी शुरुआत में बताया था। हाँ या होल्ड योर थॉट दैट एंड इसी से लेके मैं वर्षा का एक सवाल है वो पूछती हूँ. इवन आफ्टर बीइंग ऑफिशियली प्रूव्ड फेक और मिसलीडिंग टीवी चैनल्स व्हिच ब्रॉडकास्ट दोस फेक न्यूज वर नेवर हेल्ड अकाउंटेबल, हु इज अकाउंटेबल इन दैट केस? क्योंकि अगर यू नो इफ यू लुक एट द मार्कस केस ऑल्सो, जिस हिसाब से सारे मीडिया चैनल्स उस पर टूट पड़े, या फिर कोई भी ऐसी फेक न्यूज, इवन यू नो देयर आर लॉट ऑफ फेक न्यूज व्हिच यू वुड नो बेटर. न्यूज हम डिजिटल स्पेस में अगर कोई फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है वो समझ रहे हैं, बट what do you say about those channels for millions of viewership, not just in India but even abroad? तो उन टीवी चैनल्स का क्या? अब बेसिकली बहुत एक सिंपल प्रोसेस ये है कि जब हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं ना, अखबार, मैगजीन, उसमें एक गलत रिपोर्ट आ जाएगी, मिस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फेक भी अगर आ जाएगी, तो वो उसमें एक खंडन छाप देंगे, अपोलॉजी छाप देंगे। वेर एज जब ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात हुई, उसमें कभी नहीं अपोलॉजी करते हैं। Right. ये एक Right. ट्रेंड बन गया है। और चूंकि अब मीडिया भी एक माफिया की तरह ऑपरेट करने लगा कि हम नहीं कहेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि 2018 और उससे पहले जब हम लोगों को बोलते थे कि दिस इज फेक, है ना, तो दे यूज्ड टू, अरे ओह सॉरी हम डिलीट कर दे रहे हैं, या डीएम में वाकई कहते थे ओके यार, मतलब हम अपोलोजाइज कर रहे हैं, गलती हो गई थी, हमने वेरीफाई नहीं किया था। अभी क्या है, अभी नो वन अपोलोजाइजेज, नो वन डिलीट्स दैट पर्टिकुलर पोस्ट। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, स्प्रेड हो रहा है, हमारी रीच बढ़ रही है। तो ये अकाउंटेबिलिटी हमें सीखनी पड़ेगी। और ये अकाउंटेबिलिटी इसलिए भी नहीं है लोगों में क्योंकि आप एफआईआर करा नहीं रहे, आप उनको साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं कर रहे। थैंक टू द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स, अगर हम देखें इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थोड़े से स्ट्रांग हुए हैं, बीट एनीवन, बीट तबलीगी जमात केस, बीट एनी इशू, मतलब अभी आप देखेंगे अगर जिस दिन ये कानपुर वाला जो हत्याकांड हुआ है जिसमें विकास दुबे वाला, उसमें भी कई लोगों ने लिखा कि ही इज़ लाइक माई आइडल, ही इज़ माई टाइगर। तो गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया है, तुरंत लोगों को पकड़ा है, उनके ऊपर चार्जेस लगाए, आईटी एक्ट से उनको जेल भेजा है। तो ये डर अब लोगों में आया है, पहले ये डर नहीं था लोगों में। पहले लोगों में था कि अरे सोशल मीडिया पे कोई किसी को ट्रैक नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा एक ही मिसकंसेप्शन भी है कि हमारे यहाँ इंडिया की जो पुलिस है वो ट्रेन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारे यहाँ जितने भी साइबर सेल में लोग काम करते हैं, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर नॉट हैकर्स, बट उनको बेसिक प्रोसेस पता है कि कैसे आप सीडीआर निकालते हैं, कैसे आप आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं, कैसे आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, कैसे अकाउंट बंद करा सकते हैं। दे हैव द बेसिक ट्रेनिंग एंड Right. मतलब मैंने देखा कि हैट्स ऑफ टू देम कि अगर आप उनको रिक्वेस्ट लेके जाओगे दे विल हेल्प, दे आर रेडी टू हेल्प। बट प्रॉब्लम यही है कि हम इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे वर्षा ने का जो सवाल था, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी लोगों में खत्म हो गई है। उन्हें लगता है कि मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो सरकार का काम है, पुलिस का काम है, मेरा काम थोड़ी ना है। लेकिन सरकार पुलिस तभी काम करेगी जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्टिंग जो है सबसे पहला प्रोसेस है हमारा कि हम रिपोर्ट करें, एंड सेकंड प्रोसेस हमारा ये है कि हम उसका फॉलोअप भी लें। अगर हम सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें, उसका फॉलोअप ले लें एक बार। और Correct. इसका प्रेशर एक क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आप लिख रहे हैं वो कई लोग देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर पड़ता है, एंड दे डू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। और उसके बाद उसको उन्हें जेल भी भेजते हैं। ये फैक्ट है। So, you know, actually, like there is Sahil who's actually saying कि mainstream publications में अभी थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं, but the whole point is कि how do you stop? मतलब if see if it's a WhatsApp forward, you can still think responsibly and say that I'm not going to forward this message. What about when you consume mainstream media and when you know, चाहे वो पालघर का केस हो, चाहे वो जेएनयू का कांड हो, चाहे वो तबलीगी जमात का केस हो, चाहे वो यू नो किड्स ईटिंग ग्रेन्स एंड देन लिकिंग द प्लेट हो, या फिर कोई भी ऐसा केस हो, when it is shown in TV channels, क्योंकि media, India is one of the country that has highest media publications, चाहे वो TV हो या print हो.
So you have absolutely no control on who is showing what. I mean, we have Sudarshan jaise TV channels, we have NDTV jaise TV एग्जैक्टली। channels. So there is difference, you know. एंड कौन क्या कंज्यूम कर रहा है, किस टाइम पे कंज्यूम कर रहा है, फेसबुक पे कंज्यूम कर रहा है, टीवी पे कंज्यूम कर रहा है, यू हैव नो आइडिया. सो इन दैट केस, हाउ एज एन इंडिविजुअल, हाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ दिखा रहा है, देन हाउ डू यू स्टॉप इट फ्रॉम योर इंडिविजुअल कैपेसिटी? कैसे कर देखिए सकते हैं आप, सबसे लाइक हाँ छोटे छोटे सबसे स्टेप्स? सबसे बड़ी जो चीज़ यही है, हम वेरिफिकेशन को एक अलग उसमें बात करेंगे। अभी हम ये बात करते हैं कि जो कंटेंट आ रहा है उसके बारे में। फॉर एग्जांपल अगर दीपाली कंटेंट आ रहा है और मुझे लगता है कि कंटेंट मुझे नहीं देखना है, सिंपली राइट ईमेल टू देम। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशंस हैं, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको आप मेल लिख सकते हैं एंड वो बाकायदा उसका संज्ञान लेते हैं। वो मेल का आपका जवाब देंगे और उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर को बोलेंगे कि आपने जो ये खबर दिखाई है उस पर जनता ने, आपके व्यूअर्स ने भेजा है हमको मेल कि ये ठीक नहीं है, राइट। तो राइट. सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कंप्लेन हमें करनी पड़ेगी, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम एंड लेट्स टॉक रिपब अबाउट द रिपब स्टेप्स टू कंप्लेन. हाँ, अगर हम रिपब्लिक टीवी की बात कर लेते, जैसे अभी पालघर वाला था, तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू यही हुआ ना कि गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया एंड एफआईआर कराई। उसमें एफआईआर कराई तो आप देखें लोगों के बात करने का तरीका बदला। जो लोग झूठ बहुत इजीली बोलते थे, फेक न्यूज़ को इतना प्रमोट करते थे कि अरे कुछ नहीं होगा, अभी वो उस चीज़ को प्रमोट करने से 1000 बार सोचते हैं, ट्वीट करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। ये थोड़ा डराया, इट विल टेक टाइम। ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत लॉन्ग रन में हमको ये जर्नी लेके चलनी है। तो हम इस चीज़ को उम्मीद ना करें कि ये एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब जो स्टेप्स उठा रही है, अगर ये शुरुआत से उठाती, डे वन से उठाती, तो जितनी भी इंडिया में मॉब लिंचिंग्स हुई है, जो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चा चोर की अफवाह उड़ जाती थी कि नॉर्थ ईस्ट में, आपका बिहार में, झारखंड में, और वो इतनी उड़ जाती थी कि एक नॉर्मल कोई इंसान अगर टूर भी कर रहा है, उसने एक बच्चे को चॉकलेट दे दी, तो उसको लोग बहुत सीरियस ले लेते थे कि अरे ये तो बच्चा चोर है, बच्चा ले जाएगा और इसकी ऑर्गन्स निकाल लेगा, है ना। कितनी मॉब लिंचिंग्स हुई है उसमें बच्चा चोर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हमको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी। एक तो पहले फॉरवर्ड करने की आदत को बदलना पड़ेगा सबसे पहले। कुछ भी आ रहा है उसे हमें फॉरवर्ड नहीं करना है इंटरनेट पे, डोंट फॉरवर्ड। सेकंड, रिपोर्टिंग हमें करनी है, चाहे किसी भी तरह से। हम इंटरनेट पे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, हम ट्विटर पे जा सकते हैं, हम ऑनलाइन साइबर सेल्स हैं उनको कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेट जो पुलिस फोर्सेज है उनका ऑनलाइन ये एफआईआर का फॉर्मेट है बाकायदा पोर्टल पे, उस पर भी आप जाके आप एफआईआर करोगे, उसका बाकायदा आपको पीडीएफ डाउनलोड भी मिल जाता है। दीज आर नॉर्मल पुलिस स्टेशन है। और आपको इनफैक्ट साइबर क्राइम आपको रिपोर्ट करने के लिए अगर आप थाने नहीं जा पा रहे हो, फॉर एग्जांपल, यू कैन गो टू द सिविल पुलिस वेबसाइट्स ऑफ योर स्टेट। अगर यूपी है तो यूपी पुलिस की है, उत्तर प्रदेश पुलिस .nic.in, आप उस पर जाओ, उस पर प्रोसेस है, उस पर सीधे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप उस पर जाओगे, आप एक एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हो और उसके बाद उस पर एक्शन होता है ना। करेक्ट। सेम है कि आप न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स सोसाइटीज़ है, एसोसिएशन है, उनको आप रिमाइंड कराइए। इसके अलावा चैनल को भी बोलिए, चैनल को आप सोशल मीडिया पे बोलिए, आप उनको मेल लिखिए कि हमें ये प्रोग्राम आपका नहीं पसंद आया है। और अपने आसपास सराउंडिंग्स में लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल किसी को आपको लगता है कि ये इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, मेरे स्टेट में या मेरे दूसरे स्टेट में जो भी मेरे कलीग्स हैं, उनको कुछ भी एक मिस इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है जिसको उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है, क्या ये गलत हो सकती है, तो दे इमीडिएटली सेंड की नदीम ज़रा देखना इसको, इसके पीछे का क्या है, क्या इसमें तुम्हें कुछ लग रहा है, ये सही है या गलत है। तो ये आदत बनानी पड़ेगी कि आपके आसपास के लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें और आप फैक्ट चेकिंग करिए। फैक्ट चेकिंग करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है फैक्ट चेकिंग। जैसे कुछ चीज़ें हैं, आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 2000 रुपये के नोट में चिप है, आप कुछ नहीं करना है, आप जाइए गूगल पे एंड लिखिए इज 2000 रुपीज़ नोट हैविंग अ चिप फेक न्यूज़। आप एंटर करेंगे, आपको सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आप उस पर न्यूज़ आइटम्स में जाइएगा, आपको उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। उसके बाद सिमिलर उसमें आ जाता है सिमिलर आर्टिकल्स, आप सिमिलर आर्टिकल्स पढ़िए। देखिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नो डाउट। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हाँ ठीक है, ओके वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और ओरिएंट भी करना पड़ेगा। बिना इसके काम तो नहीं बन पाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। I think Manpreet is asking, right now government is able to dictate narratives because government ads का revenue thousands of crore है. I think, क्योंकि
मैं डिजिटल स्पेस इन मेन स्ट्रीम में इसीलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन टीवी चैनल्स को लेके कर रहे हैं बिकॉज टीवी में ही आपको रोज दिन ब दिन आई मीन लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल आई हैव वर्क मेजरली इन इंडियन टेलीविजन चैनल्स एंड दे आर बिग चैनल्स तो द वन वे ऑफ मिसलीडिंग द पब्लिक इज बेसिकली जब हम जर्नलिज्म क्लासेस लेते थे तो हम लोगों को अगर इफ देर इज एनी रेप केस तो हम अलिजिडली और रिपोर्टेडली का इस्तेमाल करते थे सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे अलिजिडली रिपोर्टेडली इसलिए आता है क्योंकि दोज वर्ड्स एक्चुअली टेल यू दैट दिस इज नॉट कंफर्म्ड एंड येट टू बी कंफर्म्ड अब क्या करते हैं कि वो सारा जो टीवी हाईलाइट करने के चक्कर में एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं तो बेसिकली यू गिव आउट एवरीथिंग दैट यू हैव टू से और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है एंड दैट्स हाउ न्यूज चैनल्स प्ले इट सेफ तो जहां 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 आपको लगे कि देयर इज अ बैंड दैट इज एक कोई सेंसेशनल न्यूज जा रही है और इसके नीचे अगर क्वेश्चन मार्क है यू हैव टू इमीडिएटली डिसाइड कि यहाँ पे कुछ झोल है बिकॉज दिस इज हाउ न्यूज चैनल्स आर एक्चुअली वर्किंग वन ऑफ द रीजंस आई थिंक नदीम यू एंड आई वर डिस्कसिंग इज कोरोना वायरस के टाइम पे न्यूज़पेपर के लिए अफवाहें थी कि न्यूज़पेपर के थ्रू भी फैल रहा है तो पीपल स्टार्टेड डिपेंडिंग so much on the digital space और इसके वजह से digital space को भी एक मौका मिला to basically spread the fake news but that was the whole the reason we were talking about the fake news but here I want to raise one question that has come from my friend she is in Colombia right now and she had sent me this last night her name is Aina so she is like what should I do क्योंकि क्या होता है ना कि फेक न्यूज के टाइम में हेटरेट बढ़ती है फेक न्यूज इज नॉट जस्ट एनी रॉन्ग न्यूज दैट गोज अराउंड it basically comes around to you. So if you are a person who comes from a minority religion, या फिर whoever is questioning, you are targeted, you're trolled. So, she asked, what do I do when I get DMs saying I should go to Pakistan? Or if I raise my voice in some comments, people try to shut me down. Should I stop commenting and expressing my opinion, or should I develop a thick skin? I mean, this is everybody's story. This is everybody's story. Everybody is getting trolled. हाँ सवाल आप पूछिए and मैं बोल रहा abused. हूँ And abused. abused. So fake news leads to online abuse, and fake news leads to trolls because most of the people who actually are trolled, who are abused, are the ones who actually ask questions. जैसे सुबह में I'll just tell you about today. आज सुबह में everybody started asking, अरे विकास दुबे क्यों इतने जल्दी मार दिया? Why? Fake encounter, fake encounter. People were like, now are you? Do you have any? Now you're sympathetic Exactly. towards? That And I'm like, no, that's not. We're asking. We're asking basis to the case. I want you to answer Aina's question because Aina's question is my question and everybody's question. What do I do when I get abused, when I get jokes, or when I get trolled online because I'm trying to question a fake news? देखिए पता है क्या दीपाली सवाल एक सबसे बड़ा ये है इस देश के साथ कहेंगे या मुझे नहीं पता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो और लोग की सोच से मैच करता है कि नहीं करता इस देश में सवाल पूछना एक क्राइम मान लिया गया है आज सुबह के एनकाउंटर को ले लीजिए कि मीडिया जो था वो उज्जैन से विकास दुबे को फॉलो कर रहा था कानपुर से पहुंचने से मुश्किल से मुझे लगता है जो एक उनका टोल नाका था वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग करने लग गए पुलिस की गाड़ियाँ आगे निकल गई एसटीएफ की मीडिया को वहीं रोक दिया गया 5 मिनट बाद एनकाउंटर की खबर आ जाती है सो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इस मुल्क में थी और जो 2014 से चल रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है बोलना मना है सवाल कर रहे हो तो एंटी नेशनल हो कंट्रोल नैरेटिव पाकिस्तान हाँ कंट्रोल नैरेटिव्स है आज मुझे अफसोस हुआ जो मैंने आज सुबह देखा मुझे ये देख के अफसोस हुआ कि अब वो देश के मीडिया के सामने कर रहे हैं जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पहले लोग बोल रहे थे उनको तो रोक ही रहे थे सोशल मीडिया पे जो लोग लिख रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर होती है उनको जेल भेजा जाता है कि आपने कैसे सवाल पूछा कैसे आपने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करी बट आज जो देखा वो देख के बहुत बुरा लगता है कि एक नॉर्मल मतलब जो रिपोर्टर है जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसको आपने रास्ते में रोक दिया और 5 मिनट बाद आप जो है एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर देते हैं हत्या कर देते हैं जिसको आप एनकाउंटर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम आप दे सकते हैं और कहते हैं ना कि हमारा समाज बहुत इजीली भूल जाता है या बहुत इजीली हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम डे 1 से चाह रहे थे कि एनकाउंटर हो एंड पुलिस ने किया पुलिस के बहुत सारे लूप होल्स है आई वाज फॉलोइंग अ जर्नलिस्ट फ्रॉम
पूर्वांचल यूपी। एंड उन्होंने बहुत सिंपल लिखा कि जब उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के बैठाया था गाड़ी में तो उतर कैसे गई, उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी, कैसे गाड़ी ओवरटर्न हो जाती है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि गाड़ी उसको दिखा रहे हैं कि उसमें स्कॉर्पियो में सॉरी ही इज इन टाटा सफारी, एंड थोड़ी देर बाद गाड़ी जो रोड पे पड़ी हुई है वो टीयूवी है, टीयूवी से कैसे निकल जाता है, फिर गोली चला देता है, एंड फिर जो इंसान खुद सरेंडर, Yeah. देयर आर नैरेटिव्स। मैंने कहा ना कि इट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशरी टू नो की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी या जुडिशियल इंक्वायरी होगी, बट सवाल पूछने पर रोका जा रहा है। Right. और कमिंग टू योर फ्रेंड्स क्वेश्चन कि आप सवाल पूछते हो या आप कुछ सच दिखाते हो तो लोग कहते हैं यू आर इंटरनेशनल, यू आर Yeah. सेना से जुड़ा सवाल है तो आप कह देंगे कि आप सेना के शौर्य पे सवाल कर रहे हैं। आई मीन ये कैसे हो, मतलब इस देश की सेना को जब आप टैक्स पेयर हैं, आप उस टैक्स से सेना को सैलरी जाती है, आपको सुविधाएं मिलती हैं, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें सेना की शौर्य की पे सवाल की बात कहाँ से आ गई है। सवाल Hmm. पूछना धीरे धीरे क्राइम बनता जा रहा है, और मुझे Yeah. नहीं पता कि आने वाले वक्त में, आने वाले 5 साल में इस देश में सवाल पूछने पे क्या क्या हो जाएगा। हो सकता है कि हम अपने जो इंडोर क्लोज रूम डिस्कशंस करते हैं शायद वो भी ना कर पाए, हो वो भी सकता है ना कि उस करे पर क्योंकि डर एक भी लगता गाइडलाइन है हो ना, जाए। बिकॉज डर है, बिल्कुल बिल्कुल डर है। देर आर पीपल हु ट्रोल यू। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मैं कभी नहीं बताता, और आज शायद पहली बार बता रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कि मेरे पास दर्जनों डीएम्स आते हैं, ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे आते हैं। पीपल आर लाइक हम तुम्हें जानते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम जानते नहीं द हो, थ्रेट्स, तुमको या मार के डाल देंगे, थ्रेट्स आते हैं। तो हमें उसका प्रोसेस एक बहुत सिंपल है, हम उनके अकाउंट्स को रिपोर्ट कर देते हैं, उनके मैसेजेस को रिपोर्ट कर देते हैं, उनका अकाउंट क्लोज हो जाता है। क्योंकि हम राइट। ये भूल जाते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमें डीएम किया तो या हमें कमेंट में मेंशन किया तो हम उसको रिपोर्ट ही नहीं करते, हम उसकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जिस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है उस चीज़ को हम रिपोर्ट कर दें, है ना। अगर आपको कुछ कमेंट में मेंशन कर रहा है, रिपोर्ट दैट कमेंट, दैट दिस कमेंट इज promoting hate, he is or she is inciting violence which is against a particular race, caste, creed, religion, है ना। जब आप ये करते हैं तो इन सब के एल्गोरिथम्स इतने अच्छे हैं कि उस अकाउंट को ब्लॉक कर देते, इमीडिएटली ही ब्लॉक द अकाउंट। मतलब ये नहीं है कि आपके पास 5 या 10 लोग उस अकाउंट को रिपोर्ट करें, इमीडिएटली हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी किसी ने मेरे नाम पे मीम पेज बनाया था, एंड मुझे रात के 1 बजे पता चला, और शायद उसने 12:30 बजे बनाया था। तो मैंने 1 बजे मैंने रिपोर्ट किया कि ये इलीगल अकाउंट है जो मुझे क्लेम कर रहा है। इमीडिएटली इंस्टाग्राम ने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। मतलब हम देखते हैं कि रिपोर्ट का ऊपर ऑप्शन जो है, आप यहाँ पे कहीं पे भी देख सकते हैं कि ऑप्शन आता है, लेकिन हम रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट करना जरूरी है, रिपोर्ट करना करेंगे, जरूरी। चाहे एफआईआर करेंगे चाहे ऑनलाइन करेंगे, तभी बात बनेगी। अच्छा, या लीगल है प्रोविजंस, आपको कोई पाकिस्तान नहीं भेज सकता है, कोई आपको देश निकाला नहीं कर सकता, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है जब हमारे देश के सत्ताधारी एमपी लोग हैं, विधायक लोग हैं, जब वो बोल देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या वो कह देते हैं कि अरे जो एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, व्यू उसका अगेंस्ट है, तो वो लेफ्टिस्ट है, उसको पाकिस्तान भेज दीजिए, उसको भगा दीजिए, देशद्रोही है। तो ये नैरेटिव सेट्स हुए हैं, राइट दीपाली। अगर इन नैरेटिव राइट। का हमने विरोध नहीं किया, शुरुआत में एक पर्टिकुलर रिलीजन को फ्रेम किया गया, फिर कास्ट को करने लगे, अभी सब आ गए हैं। आप, मैं और आपकी बात है ही नहीं, आप कोई भी थर्ड पर्सन है, अगर वो कुछ सच लिख रहा है, देयर आर पीपल हु स्टार्ट ट्रोलिंग, दे स्टार्ट लाइक कि Yeah. You तुमने know, लिखा Nadeem, कैसे। I would like to stop you because it's very important that we define online abuse. और actually में नदीम और मेरी भी बात हो रही थी कि हम अगर फेक न्यूज पे कर रहे हैं तो हमको ऑनलाइन अब्यूज पे काम बात करनी चाहिए क्या? क्योंकि ऑनलाइन अब्यूज ही आपस में एक खुद में एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में। व्हाई इट इज अ बिग इशू इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो हिंदू ने किया है, 8 out of 10 people in India have experienced some form of online harassment, and 41% of women have experienced sexual harassment in cyberspace. क्योंकि एक कोई भी कमेंट लिख देते हैं ना, अगर मान लो ये एंटा एस्टेब्लिशमेंट कमेंट है, immediately you get tagged to another party like an opposition party and you get abused. I mean, it's okay for you to being called as somebody else's party. I mean, it's political party. अगर आपको लेफ्टिस्ट बोला जाए, कांग्रेसी बोला जाए, वो अलग बात है. But you are called names. You are abused. Your photo is used, and you know what is. And there are crimes for it. Basically, online abuse or cyber stalking is basically keeping tab on victims' online activities, sending them threats and unsolicited messages and emails. ये एक्चुअली में जब बात किए हम कर रहे थे तो बहुत ही छोटी बात लगती थी पहले कि ये कभी नौबत नहीं आएगी, बट अभी आप अगर अपने डीएम्स खुले रखो तो यू गेट अब्यूज्ड।
अगर आप इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम जैसे स्पेसेस पे आप अब्यूज हो जाते हो, अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े पहन पहन लिए जो समबडी इज नॉट अग्रीइंग टू इट, तो आप अब्यूज हो जाते हो, अगर आपने सवाल पूछा तो आप अब्यूज हो जाते हो, आप हर चीज में अब्यूज हो रहे हो। तो एंड फेक न्यूज को भी क्वेश्चन करने पे आप अब्यूज हो जाते हो। तो देयर इज, and there are two these are actually two different issues, but they're connected issues. So Nadeem, would you be able to tell us about the IT Act 2000, जिसमें हम ऑनलाइन हरासमेंट पे कैसे एक्ट करें, चाहे वो फेक न्यूज पे भी हो या फिर ऑनलाइन अब्यूज पे भी हो? एंड आई थिंक वी शुड हैव अ सेपरेट टॉक ऑन इट, like separate Insta हाँ live हाँ for वी it, कैन but maybe you डेफिनेटली can just डेफिनेटली वी कैन हैव दैट। talk to बट हम yeah. एक बेसिक बात ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम आईटी एक्ट 2000 की बात करें तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे न्यूडिटी को लेकर के है कि एक बहुत छोटा सा टर्म है न्यूडिटी। अब कोई किसी के फॉर एग्जांपल मॉडेस्टी को अगर कोई चैलेंज कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, बीट फोटोग्राफ, बीट वीडियो, ऑडियो, मॉफ्ड फोटोग्राफ्स हैं, तो उसमें प्रोविज़न है, उसमें 5 साल की जेल है आईटी एक्ट में। इसी तरीके से अगर कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है और किसी को डिफेम कर रहा है तो उसमें मानहानि का दावा किया जा सकता है। उसका भी प्रोसेस है, उसमें भी 10 साल की जेल है। तो आईटी एक्ट जो है बहुत मजबूत है इंडिया का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता है ना कि एक तो हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये हमारा कोर है कि हम रिपोर्ट नहीं करते। जैसे नॉर्मल किसी की फेक आईडी बन जाती है तो हम कहते हैं अरे यार छोड़ो, बहुत होगा हम ब्लॉक करा देंगे। हम कभी ये कहते ही नहीं है कि इस आईडी पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस आईडी के बारे में पता किया जाए कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ से बनी है, किस मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड होकर बनी है। ऑब्वियसली इंटरनेट आज हम सब मैक्सिमम लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। बहुत कम, मतलब देर आर पीपल जो वाईफाई यूज़ करते हैं होम में, ऑफिस में, बट देर आर मैक्सिमम पीपल हु यूज़ इंटरनेट इन द फोन्स, है ना। और ये बहुत ईजी किसी को ट्रैक करना, ट्रायंगुलेशन होता है और नियरेस्ट 3 लोकेशन से ट्रायंगुलेट करके एकदम एग्जैक्ट लोकेशन निकल आती है कि भाई कौन है जो इस मोबाइल को चला रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोविज़न है लॉ में, ऐसा नहीं कि लॉ में प्रोविज़न नहीं है या सरकार कुछ अलग करेगी, कुछ नया करेगी कि प्रोविज़न नहीं है, प्रोविज़न बनानी पड़ेगी हमको। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम सोचते हैं अरे यार हम क्यों इनिशिएटिव लें। एक हमें सिखाया जाता है घर में, सबसे मतलब हमें लगता है बचपन से हमारी ग्रूमिंग होती है, कोर्ट थाने के चक्कर में मत पड़ना भैया, कोर्ट थाने Yeah. जाओगे तो अच्छा नहीं होता, इनकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, कितने चक्कर लगाओगे। बट एक्चुअली लॉ में प्रोविजंस हैं, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए कर दोगे, आपने एप्लीकेशन दे दी, फिर आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद कोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है, लॉयर होते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बट हाँ आपको कभी कभार 1 या 2 बार आपको बयान लेने के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप अवेलेबल हैं, नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी बयान होने लग गए हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, उससे बयान हो जाता है। तो ऐसा कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है कि दिक्कत हो जाएगी आपको कि आपका बयान नहीं हो पाएगा या आपके खिलाफ वारंट। एक बहुत नॉर्मल कहा जाता है कि आपने कोर्ट में दे दिया कि हम गवाही देंगे, उसका आप नहीं गए तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकल आएगा और आप जेल चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी प्रोसेस चेंज हुआ है। ठीक है, कानून जो था वो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पे राज करने के लिए बनाए थे, बट उस कानून में कुछ चीज़ें बहुत सारी चेंज भी हुई है। कुछ प्रोविजंस आए हैं कि आप किसी को नहीं बुलाएंगे, अगर महिला है, वुमेन्स रिलेटेड क्राइम्स हैं तो उसमें आप उसको बार बार परेशान नहीं करेंगे, एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रहा है। मतलब अगर आप साइबर क्राइम में देख लें तो है कि अगर सीओ लेवल का ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फाइनल रिपोर्ट वही लगा सकता है, एक नॉर्मल सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं लगा सकता। सर्किल ऑफिसर हु इज़ अ गजेटेड ऑफिसर यानी कि डिप्टी एसपी रैंक का, वही फाइनल रिपोर्ट एफआईआर लगा सकता है। तो प्रोसेस है, बट पता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में कि मतलब कहाँ जाए, है ना। उनको लगता है कि ठीक है चलो छोड़ो, होता है कोई बात नहीं, हम होगा हम कुछ I दिन think अपने डिजिटल जर्नीज खत्म। we need to have a separate हाँ वी conversation कैन on हैव अ it. But सेपरेट। I think I should just take questions. There are so many questions and I haven't been able to take. Because श्योर I, श्योर। I just addressed Ravi Krishna. So he basically is saying, please also talk about USA, where Trump say CNN, IBN, CNN and Washington Post spreading fake news when they show against him. Then about international measures from who fact check and yeah. But I think Ravi Krishna, I understand that we talking about it, but हमारे country में, let's start with our country first, because Trump ने बोला कि drink detergents and people actually drank it. So that's such a एग्जैक्टली, when an irresponsible leader makes irresponsible बहुत statements. बिल्कुल बिल्कुल बहुत थिन लाइन है न्यूज़ स्टोरी की। मैं बता दे सकता हूँ कि लॉकडाउन शुरू हुआ था, जनता कर्फ्यू हुआ था, हमारे ऑनरेबल पीएम ने कहा कि थाली बजाना है, घंटा बजाना है। ठीक, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लोगों ने उसको क्या इंटरप्रेट किया,
Yes. थाली घंटा बजाने से जो वाइब्रेशन होगा उससे सारे जर्म्स, सारा वायरस खत्म हो जाएगा। And अभी then होता क्या है ना, that's, दे yeah, दे स्टार्टेड, मतलब आप yeah, उन्होंने बोला कि ठीक है मोमबत्ती जलाएंगे, लैंप nakshatra जलाएंगे, time. मार्टिर्स को। हाँ, लोगों ने नक्षत्र टाइम, उन्होंने वो एक पुरानी फोटो है कि नासा ने आज फोटो भेजी है पूरे इंडिया में, देखिए रोशनी हो रही है। तो ये चला आ रहा है ना बेसिकली। Yeah, उसको yeah, कैलकुलेट कर रहे हैं, डेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें फिर डेट में आ रहा है 56 कह रहे हैं देखिए मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो इसलिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक किया। yeah, तो प्रॉब्लम यही है कि उन नरेटिव्स को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हमें खुद हम भी तो बुद्धि actually I लगानी think, पड़ेगी। yeah, so that's exactly what I was coming to, कि it is up to me and I'm telling my thing, तो आपको, आप दिए जला लो, आप सब करो जो, because उन्होंने भी जब बोला था वो अच्छे इंटेंशन से ही बोला था, तो बेसिकली स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड इन इंडिया वी बिलीव स्पिरिचुअलिटी, तो वो पॉजिटिव एक इंटेंशन ही था, बट पीपल जस्ट केम आउट ऑन द रोड व्हेन ही सेड, यू नो, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रम्प, so that is that is basically on how you interpret your leader, and interpret karna is your problem, not the leader's problem, because leader नॉट ने द तो लीडर्स बोल दिया, I प्रॉब्लम, mean राइट। obviously it's irresponsible, but आप जो बोल रहे हो in a responsible position, आपको responsible statement देना चाहिए। यहाँ पे मैं यूएस की बात कर रही हूँ, पर इंडिया में ये हुआ कि लोगों ने अपने परसेप्शन बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने अपने न्यूज पेडलिंग शुरू कर दी, यू नो, सो एंड I'll come to another question. Who could be the possible, what could be the possible solution for rural population to counter fake news? I think ये आपस में बहुत बड़ी बात होती है. Here I would just like to, you know, quote Arundhati Roy once. She said कि आपको लग रहा होगा कि हिंदी मीडिया पागल है क्या, बार बार झूठ फैलाई जा रही है, but that is the way of basically disseminating information. आप हिंदी मीडिया, चाहे वो छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, क्योंकि हमारी हिंदी ऑडियंस इतनी ज्यादा बड़ी है, वो आप आराम से कोई भी न्यूज पेडल कर सकते हो, और न्यूज अब्सॉर्ब करने वाले मिलियंस, करोड्स में मिलेंगे इंडिया में. That is the problem, है ना Nadeem? Like, how could you possibly stop? I think rural population is something which is obviously even urban population बेसिकली these days. आईटी में जो बूम आया, मोबाइल में इंटरनेट खास करके जियो के आने के बाद से, जो 1 GB हमें मिलता था 399 का, जो पूरा मंथ चलता था, अभी वही 299 में हमको जो पर मंथ मिलता है, पर डे 1.5 GB मिलता है। तो खर्च तो हो नहीं पा रहा है, हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, हम डेटा का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अच्छा, सर्च इंजन ने भी अपना पैरामीटर चेंज किए, अर्लियर वी यूज टू टाइप, है ना, अभी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल का कैमरा ऑन करते हो, गूगल लेंस का इस्तेमाल करते हो, वो स्कैन करके बता देता है कि क्या चीज़ है ना, क्या इशू है। कुछ नहीं होता है, आप गूगल असिस्टेंट को या सीरी को आप सीधे पूछ लेते हो, एंड वो बता देता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, इससे ये इशू है। अब Hmm. ये टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान करने के लिए थी, उससे नुकसान हमने खुद किया है अपना, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। देखिए, गवर्नमेंट अपना कर रही है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अब उनको लगता Hmm. है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, इसे टैकल करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमें भविष्य में कहीं का नहीं छोड़ेगी। लेकिन Okay. हाँ हाँ, श्योर। There are too many questions, or I think we have. I'll take three questions together, और मैं उसको note down भी करूँगी. I'll basically Rizvi asked which news is true. How do we decide? News कौन सी सच्ची है, हम कैसे उनको decide कर लें? Tribeni is asking terms to verify any forward when they receive on WhatsApp. Is there a site? और पहली थी कि how do we decide which news is true? Then second is on the verification. और रिजवी ये भी पूछ रहे हैं, like which version is true about the recent circulation of the picture in Kashmir, the boy in Kashmir. Online can we verify easily? TV is difficult to track. So I think ये तीन questions है basically, one on the verification, one on the which news to decide, and how do you track the TV. ठीक है, तो हम इसको एक नॉर्मल तीनों सवाल को हम मिला के लेते हैं। Hmm. देखिए, वेरिफिकेशन जो हम लोग करते हैं बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे इन्वेस्टिगेशंस होती है, जासूसी होती है, सेम वही होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह ही हम लोग दिमाग चलाते हैं। रीज़न क्या होता है, देयर इज़ अ वीडियो, उसे आपको कई बार देखना पड़ेगा, आपको स्लो करके देखना पड़ेगा, उसमें गाड़ी का नंबर दिखता है, आप गाड़ी का नंबर नोट डाउन कर लो, आपको इंटरनेट से पता चल जाएगा ये गाड़ी का नंबर है, इससे कहाँ की गाड़ी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, दैट्स इट। ठीक है, आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, कौन सी भाषा बोल रहे हैं लोग, क्या लिख के आ रहा है, कौन सी लैंग्वेज में लिख कर आ रहा है ना। इसके अलावा Hmm. अगर आसपास कुछ साइन बोर्ड है,
कोई एरिया लग रहा है आपको, जियोग्राफिकल एरिया लग रहा है, तो आप उसे भी वेरीफाई कर सकते हो। ये होता है बहुत बेसिक तरीका, मतलब जिसे हम लोग करते हैं। इसके अलावा रिवर्स इमेज सर्च होता है। गूगल पे आप जाओगे, google.com इमेज स्लैश करोगे, उस पर आप इमेज अपलोड करोगे, तो वो उस इमेज को रिवर्स सर्च करके दिखा देगा कि ये इमेज सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी। यानी कि कोई हम्म भी चीज़ है, इंटरनेट पे अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है, सॉरी छोड़ता है, हम्म तो उसको हम वहीं से पकड़ते हैं कि ये सबसे पहले कहाँ अपलोड हुआ था। सेम विद हम्म वीडियोस, वीडियोस के लिए इनविड्स आर देयर। हम वीडियो का की फ्रेम काटते हैं और उसको हम रिवर्स इमेज सर्च करते हैं। अच्छा, गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे यांडेक्स है, बिंग है, बहुत सारे अंडरग्राउंड इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोग सर्च करते हैं और डेटा उठाते हैं। लेकिन मैं आपको 5 टेक्निक्स बता रहा हूँ, जिसको अगर आप इस्तेमाल हम्म करेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है, 80% मान के चलिए, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि एटलीस्ट 80% आप अपना जो फेक न्यूज़ है उसको आप टैकल कर लेंगे। तो हम्म टैक्टिक नंबर 1 है, कभी भी कोई आपको स्टोरी आ रही है, लिंक आ रहा है, उसे क्लिक करके देख लें, क्योंकि थंबनेल हम्म से करस्पॉन्डिंग कंटेंट कभी नहीं होता है। कई बार कंटेंट राइट। बिल्कुल अलग होता है, पता चला ऊपर लिखा है कि शेयर कीजिए सभी रुके हुए काम पूरे होंगे, अंदर Nadeem, क्या है, hold अंदर on, इज hold on. नथिंग। हाँ। Instagram is showing me only 20 minutes are there. I think what I think we can do is those who are there with us will come back. We can log out now and we can. I will just send you a request again and maybe we can talk because there are a lot of questions and I think it's good that we answer them. So it's going to अंदर स्टोरी end अलग होती है, now. ऊपर लिखा है तो शेयर कीजिए सभी मैं रुके हुए काम पूरे maybe like होंगे, अंदर क्या है, अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम लॉन्च करी है ना। तो बहुत अलग अलग हम्म चीज़ें होती हैं। ओपन ज़रूर करें स्टोरी, पहली चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले। दूसरी चीज़, हम्म जब आप ओपन करते हैं स्टोरी, तो स्टोरी में एक चीज़ ध्यान रखें कि जो थंबनेल है और हेडलाइन है, क्या वो मैच कर रही है, कंटेंट मैच कर रहा है। अच्छा ठीक। अच्छा बहुत बार होता है कि थंबनेल अलग होता है, हेडलाइन अलग होती है, कंटेंट अलग होता है, और तीनों के मतलब, अगर आप थंबनेल तो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया, अगर आप इसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, अ, ऊपर का हेडलाइन और जो नीचे कंटेंट है उसका आप वो भी देख सकते हैं, जो साइज है फॉन्ट का, कई बार फॉन्ट एकदम अलग अलग होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है ना। हमने देखा हम्म मीडिया में फॉन्ट तो कम से कम एक बराबर ही रहता है। तो देखेंगे आप हम्म कि एकदम से हेडलाइन बहुत बड़ी है, एकदम अलग फॉन्ट में है, और नीचे जो कंटेंट है भले छोटा है लेकिन वो एकदम अलग फॉन्ट में, तो फॉन्ट एकदम अलग हो जाता है। ठीक। तीसरी हम्म चीज़, आप देखें ऑथर कौन है उस स्टोरी का, क्या वो ऑथर क्रेडिबल है। क्या उसे, अगर नदीम ने, मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने स्टोरी लिखी है, तो क्या आप उसे देख सकते हैं कि वो उस स्टोरी को कितनी, उससे पहले उसने कितनी स्टोरी लिखी, क्योंकि जब आप ऑथर को क्लिक करते हैं तो उसकी पुरानी स्टोरी दिख जाती है। तो ऑथर हम्म जरूर देखिए कि ऑथर कौन है, क्योंकि कई बार ऑथर हम्म का नाम नहीं होता है, वो सिर्फ खाली नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट होती है और उस पर कुछ भी हम्म स्टोरी हो जाती है। फिर चौथी चीज़ हम ये देखते हैं कि डेट और टाइम क्या है, मतलब हम्म 2012 की, 2010 की स्टोरी है, और बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ है, हम ऊपर से पुष्प वर्षा करेंगे, हेलीकॉप्टर से और प्लेन से, आर्मी नेवी एयरफोर्स के सारे। ठीक। एएनआई ने एक फ़ोटो ट्वीट करी कि मज़दूरों के ऊपर फ्लावर्स शावर हो रहे हैं। वो जो हम्म फ़ोटो थी वो दो अलग अलग पार्ट में थी। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, और जो फ्लावर एक्चुअली जो चॉपर गिरा रहा था, वो हम्म 2015 के रिपब्लिक डे परेड की फ़ोटो थी। हम्म डेक्कन हम्म क्रॉनिकल ने बाकायदा स्टोरी करी है उसके ऊपर कि 2015 का रिपब्लिक डे परेड का फोटो है, फ्लाई पास्ट है। तो गलती किसी से भी हो जाती है। मैंने कहा ना कि वो फोटो लगाने के चक्कर में जो पहली फोटो मिली उठा के हमने लगा दी, सोचते हैं कि कोई वेरीफाई नहीं करेगा। तो एटलीस्ट ये ज़रूर आप देख लें कि उसमें जो फोटो लगी है वो कंटेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। और वो हम्म आर्टिकल 2015 का था, शेयर अब लोग कर रहे हैं, तो डेट जरूर देख लें, टाइम जरूर देख लें, क्योंकि पुराने पुराने आर्टिकल्स होते हैं, नए नैरेटिव के साथ हमें दिखा दी जाते हैं और हम उसे ओके मान लेते हैं। और राइट पांचवा, एक सबसे बड़ा अहम गोल्डन रूल ये है, जो अभी हमारी डिस्कशन हुआ था, कि क्या ये वाकई हो सकता है। अगर हमने ये देखा है स्टोरी और हम उसे चैलेंज करने जा रहे हैं, तो हम एक बार सोचें, क्या 2000 के नोट में चिप हो सकती है। क्या 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 लॉजिकल थिंकिंग क्या लॉजिकल थिंकिंग है कि किसी चीज़ में पावर सोर्स नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि उसमें चिप होगी, है ना। और इतने सारे नोट्स उसमें, मतलब इट्स अ हेडेक थिंग कि चिप वाला तो चीज़ हो ही नहीं सकती। या नॉर्मल दिखा दिया कि यूनेस्को ने हमको जो है ना सबसे बेस्ट कंट्री, हैप्पीएस्ट कंट्री हमें बनाया है। तो आप सोचिए, क्या यूनेस्को का ये काम है। यूनेस्को का काम एजुकेशन पे है ना, साइंटिफिक थिंग्स पे है, कल्चरल थिंग्स पे वो बात करता है यूनेस्को। तो ये हमें थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ सोचनी पड़ेगी, हमें इलॉजिकल चीज़ों से बचकानी चीज़ों से बचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो सामने हो रहा है, एटलीस्ट उसको हम समझें कि ये है क्या। राइट
फॉर एग्जाम्पल राइट। पता चला हमने, तो ये 5 गोल्डन रूल है, इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिवर्स इमेज सर्च मैंने आपको बताया। मान लीजिए आप रिवर्स इमेज सर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये पांचों देखने के बाद भी आपको फेक न्यूज पल्ले आपके पढ़ ही गई, तो आपको करना क्या है? उठाइए उस न्यूज को, उसका हेडलाइन हम्म। पढ़िए और उस हेडलाइन से रिलेटेड खबर गूगल पे सर्च करिए, गूगल पे लिखिए, उस हेडलाइन के बारे में लिखिए। जैसे या मैंने फैक्ट चेकिंग जब नहीं सीखी थी, जब मुझे नहीं आता था, तो मैं ऐसे ही सर्च करता था। तो मैं लिखता था 2000 रुपीज नोट इज हैविंग अ चिप फॉर ट्रैकिंग, और उसके बाद मैं आगे राइट। लिख देता हूँ फेक न्यूज, फैक्ट राइट। चेक, और एंटर आप कर देंगे। तो उससे रिलेटेड अगर फेक न्यूज से रिलेटेड फैक्ट चेक होंगे, या किसी ने उसको रिपोर्ट किया होगा या ट्वीट को रिपोर्ट किया होगा, तो वहाँ शो हो जाएगा। वहाँ से भी आपको एक बहुत आसान मदद मिल सकती है। मतलब आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, ट्विटर इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप गूगल पे सर्च करो। गूगल पे करोगे तो सारे रिजल्ट्स आपको क्लियरली मिल जाएंगे। बाकी इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखना है। 5 ही बेसिक चीज़ है ही है जो हम जैसे मीडिया में देखते थे, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, वाई, हुम, है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई ये खबर हो सकती है कि नहीं, है ना। मतलब अगर कोई ये लिख के कह दे कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ मेरी छत है जो 6x6 की भी एक छत है, और उस पर वो MiG-29 उतरेगा, तो ये इलॉजिकल थिंग है ना, ये कभी नहीं हो सकता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत जो कह रहा है ये नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, हम सोचते हैं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, इंटरनेट पे लिखा तो सच होगा ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पे जो कुछ भी है वो सच नहीं है। नहीं है। तो बहुत सारी या चीज़ें करेक्ट। फन के लिए है। मैं बहुत एक छोटा सा, एक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक नॉर्मल एक स्टोरी बताता हूँ जो भी 5 दिन पहले थी। बडवाइजर सब लोग जानते हैं, एक अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है, बियर बनाती है। अब उसकी बियर को लेकर के एक वेबसाइट थी जो सिर्फ होता है ना फनी ह्यूमर न्यूज़ लिखती है। अब उसने लिख दिया कि बडवाइजर में एक बंदा था जो पिछले कई साल से बियर को पी रहा था, और उसके बाद उसी बियर का जो उनका स्टोरिंग कंटेनर था उसमें वो यूरिन कर रहा था। ठीक, अब लोगों ने स्टोरी उठा ली, इनफैक्ट इंडियन मीडिया ने, बड़े बड़े अखबारों ने ऑनलाइन इसको कोट कर दिया कि बडवाइजर में ऐसा होता है, और मेक इन इंडिया वाली बियर पीजिए, और ये सारी चीज़ें। बात किसी ने देखा ही नहीं कि वो वेबसाइट साफ साफ लिखा है, ऊपर लिखा है कि हम जो भी खबर लिख रहे हैं इट्स फॉर प्रैंक पर्पस, नथिंग एल्स। या मतलब या इवन वेस्टर्न मीडिया तक ने इसको कोट किया। तो ये यू नो हमें समझना पड़ेगा कि जो, हाँ हाँ, that's exactly what Maika is saying. She's like, WhatsApp WhatsApp is not gospel truth. Neither anything that is written on internet is a truth. See, that is जहां पे भी आपको खबरें मिली, नॉट नेसेसरीली इवन द बिग एंकर्स दैट जो भी बोल रहे हैं वो इट इज नॉट ट्रू। एक चीज, वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू से, बहुत ही बेसिक सवाल है, बट क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हमको इस बारे में बात करनी चाहिए। ईच वन, ये पुराने इसमें था द लाइव दैट वी जस्ट केम आउट ऑफ, ईच वन इज अ पार्ट ऑफ वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे वो फैमिली से होके, ऑफिस से होके, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन मीट, और यहाँ पे फलाना अलुमना, ये वो कंट्रोल नहीं रहता कि कौन क्या किसमें लिख रहा है। हाउ डू यू स्टॉप एज एन इंडिविजुअल? मैं किसी प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट म्यूट तो कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, बट हाउ डू आई स्टॉप ऑन इंडिविजुअल बेसिस जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ना, जो व्हाट्सएप पे सिर्फ आता बहुत छोटी सी एक, इस प्रॉब्लम का बहुत छोटा सा सोल्यूशन ये, द मोमेंट समवन पोक्स समथिंग विच इज यू थिंक कि ये सस्पिशियस है ना, ये गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ है, जस्ट राइट इंडियन पेनल कोड की IT एक्ट 66 के तहत मैं मुकदमा कराने जा रहा हूँ, मुझे है। जाना है। ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश। इंडियन कोड, as इंडियन per penal code, as per the Indian Penal आईपीसी। Codes IT Act, IPC के IT Act 66 के प्रोविजंस के अंडर, मतलब उस प्रोविजंस में आई विल लॉन्च एन FIR अगेंस्ट यू द मोमेंट यू से आई डेफिनेटली अश्योर यू 99% पीपल विल से अरे नहीं 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 डिलीट हम करें, हम इमीडिएटली वी आर डिलीटिंग। देयर आर पीपल आई नो, देयर आर मतलब देयर आर लाइक पार्टी के कोर, मतलब आइडियोलॉजी से बिलीव करने वाले, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनकी इतनी स्ट्रांग है कि आप उनसे कह दो तो वो आपसे लड़ जाए। बट द मोमेंट आप उनसे बोलो कि मैं जो है एक FIR करा दे रहा हूँ, बस बाकी मुझे कुछ नहीं करना, कोर्ट में समझ हाँ, लेंगे, सिर्फ इतना आप कह करेक्ट। दोगे, दे विल सबसे पहले वो आ जाए। क्योंकि इंटरनेट पे सबको ये लगता है ना कि आ, हमारे कुछ कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ तो बिगाड़ तो नहीं सकता। देयर इज अ पर्सन हु इज कमेंटिंग कि आई हैव एक्चुअली डन दिस, एक्चुअली इट वर्क्स। आप बोल दो कि इट हम वर्क। FIR करा या देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम समझ लेंगे तुमको। तो या 99% सबसे पहले तो पीछे, क्योंकि हमारे अंदर डर बहुत है ना, और अब लोगों में थोड़ा डर आने लगा क्योंकि लोग जेल जाने लग गए राइट। हैं। राइट। कॉन्स्टिट्यूशनली पुलिस अरेस्ट कर रही है, बाकायदा अखबार में नाम आ रहा है कि इन्होंने
गलत टिप्पणी करी, गलत कमेंट पास किए, तो ये डर आ गया है और ये डर आना हम्म, जरूरी था। ठीक है, पैंडेमिक था, पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली है। अब हमें एज अ सिटीजन आपको हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये गलत है, हम रिपोर्ट करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम एफआईआर करेंगे, एफआईआर करने से हम चूकेंगे नहीं। मैंने प्रोसेस या बता दिया, आप ट्विटर पे एफआईआर कर सकते हो, मैं आप चीज वेबसाइट को पे कर दोबारा सकते से हो एंड रिपीट कर रही हूँ। थाने पे भी जा सकते हो। हाँ। Please, please, whoever in your WhatsApp group, because you know what, WhatsApp groups are the way that आपने मतलब ऐसा होता है कि आप पे कंट्रोल नहीं होता, चाहे आपके वो कलीग्स हो या फिर आपको फैमिली कोई ताता ताया काका चाचा फूफा जी कोई हो या फिर whoever, you know, WhatsApp group is like you, it frustrates you. Family has wars over WhatsApp group. नदीम ने एक सिंपल सोल्यूशन बताया है, इंग्लिश में हिंदी में आपके प्रिफर्ड लैंग्वेज में लिख के, आईपीसी एक्ट 66 ए के प्रोविजन के अंडर आई विल लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट यू, है ना? आई थिंक दैट बिल्कुल, simple you know दैट्स simple step makes you responsible to stop this, because we're not talking big things here, we're just talking small things, and I'm really loving the response that we're getting, you know, because we lost few people in the last transition from the last live to this live, but I think we need to talk more about how to stop fake news. We need to talk more about how fake news creates online abuse. And abuse मतलब जरूरी नहीं है कि आपको you know कोई मार पीटे, but abuse is also whatever people follow you on. Say if you are writing anything that somebody is not accepting or agreeing on Twitter, वो इंसान आपको Facebook पे फॉलो करता है, वो इंसान आपको ट्विटर पे फॉलो करता है, टेलीग्राम पे फॉलो करता है, आप जहाँ हो आपको फॉलो करता है, आप पे अब्यूज करता है, पीपल जस्ट दे it becomes so toxic when somebody abuses you. It becomes toxic. Those words that they write for you is toxic. I have seen people actually take break from Twitter because it becomes a toxic space when you talk, and that is a way of expression. I have, in fact, the way the thought that this entire life का जो thought आया, that I am pretty active on WhatsApp, on Instagram and Twitter. Twitter पे मैं news से, because I was a former journalist, I quit news channels because I did not agree to the way news channel was running. I work in a development sector today, and this is a well thought out plan. Why I decided to work in a development sector, leaving my 9 years of career in television media, because it is difficult to survive in an atmosphere that you don't agree with when you know it peddles fake news. But even as a person who looks at the WhatsApp family messages or official messages, anyway, you can act in your own individual capacity. And we need to talk about it, because cyber stalking is big, cyber abuse is big, online abuse, online trolls, doxing is big issue. It does affect your mental health, and especially कोरोना के टाइम पे आई मीन व्हाई आई वाज एक्चुअली यू नो नदीम, मेरे दिमाग में ये इसीलिए बात आई क्योंकि वैसे भी कोविड के टाइम पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आई रिमेम्बर इन गोवा एक केस आया था जहाँ पे पीपल जस्ट स्टार्टेड गेसिंग कि किसको कोरोना हुआ है, एंड दे रैंडमली स्टार्टेड पुटिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, or the entire family was traumatized for 2 days, and they had to come out on social media and say, we are not the ones who actually, this is a distant relative who shares a similar surname jisko hua hai. That becomes a problem. But anyway, I would like to end it, I think, because you know we have anyway extended this for a long time. We need to talk about online abuse more. We need to talk about online trolling, and we need to talk about legalities which involve us to talk about these issues. Nadeem, I cannot thank you enough for coming on such a pleasure short is notice, mine. helping me to not just talk to you know me, but also like so many people, because I've seen the response in the previous live, and people really want to know more. Any one of you want me to do a part two with Nadeem? Please write it to me on my DM or just tell Nadeem, and we would be happy to talk about it. Whatever information we have, there is so much to talk about online abuse. What is stalking? What is online stalking? What can you do if there is a troll that is who is harassing you? What is ghosting? We can talk about everything because we have that limited knowledge, but it's a credible knowledge that we can share. In our limited capacity, we will continue the conversation if anyone wishes to know more about it.
And Nadeem, I thank you, and I thank all of you who Pleasure is actually mine. made a transition between the last live and this live. हमारी बातें बस चलती गई. But thank you everybody for joining in. Thank you Nadeem for Thank you. helping me understand and also sharing whatever you have. And एक पार्ट ही शेयर किया और भी बहुत कुछ शेयर करना बाकी है. बहुत कुछ है एग्जैक्टली है ना? Let's keep talking. बिल्कुल Let's keep talking. And डेफिनेटली I'm sure it डेफिनेटली benefits a lot of people. I mean, जो 5 steps आपने बताए हैं, basically, I think I would like to repeat it. नदीम ने एक बहुत ही simple steps बताए हैं. Every link that comes, do not open until you open the link. Please do not forward the link. एक बार आपने ओपन कर दिया, आप उसमें से जो हेडलाइन है, थंबनेल्स है, वो चेक करें. आप ऊपर का पार्ट चेक करो. Check the content. Is the headline matching with the content? The third thing he said, keep the fonts checked. So if you're reading a credible source of information in any newspaper, magazine or digital space, एक बहुत ही हर पब्लिकेशन का एक फॉर्मेट होता है. अगर आपको लग रहा है कि कोई पे हैपहैज़र्ड वे में कुछ लिखा गया है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या कुछ यहाँ पे गलत है. चेक द ऑथर. कौन है ये ऑथर जिसने लिखा है? उस ऑथर का कोई पास्ट जर्नलिस्ट बैकग्राउंड है क्या? क्या ये दिस इज जस्ट लाइक any other name? Is the name popping up? Is the person writing who is credible? Then he tells me, please check the date and the time. कब लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, कौन से टाइम में लिखा गया है, ये खबर कब की है. And last he said, please use your brain and please tell people to use the brain. तो हम दिमाग नहीं एग्जैक्टली यूज करते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है ना? People get abused, people get trolled. There are cases of lynching where people are being brutally killed. Lynch mob justice को प्रोत्साहन मिलता है. There are a lot of things that happen, and it's a very very serious issue. Also, I would like to make an announcement that I would be live during this week talking about mental health and students also, but that would be on Facebook, and I'm sure I will share it on all the platforms that I am available in. I will keep talking about these sensitive issues that matter to us with different resource person. And today's resource person was Nadeem. He's my friend. Can't thank you enough, Nadeem. Thank you so much. Thank you everybody who थैंक्स joined अ in. I लॉट hope everybody ओके liked the conversation we had, and I'm ओके just glad बाय everybody joined. exactly that was a wonderful conversation and apart from that the questions were too good I Yeah, mean that yeah, was too much interactive session we have very much. And in fact, I मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा है because some of the questions I missed in our previous lives. वो अचानक से बंद हो गया. I didn't realize. But let's keep talking. Yeah. sure Thank you everybody for joining in. I will end this session. Thank you everybody. Bye. bye Bye, Nadeem.